الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وسع على أهله ونفسه يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وقال جابر فجربناه فوجدناه كذلك او كما قال. محترم حضرات، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک دنیا کی مختلف قوموں میں چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہ رواج رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک کیلنڈر تیار کیا، اس لیے کہ ماضی اور گزرے ہوئے زمانے کی تاریخوں کو اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو یاد رکھنے کے لیے کسی تقویم کا یعنی کہ کیلنڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شروع زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام جس دن جنت سے دنیا میں اتارے گئے تھے اس دن کو اور اس سال کو اس زمانے کے لوگوں نے اپنے کیلنڈر کا پہلا دن اور پہلا سال قرار دیا. لوگ اس طرح یاد کرتے تھے کہ اس واقعے کو پیش آئے ہوئے 5 سال ہو گئے کب سے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو گویا کے جنت میں اتارا تھا. یہ ایک ایگزامپل، ایک مثال ہے. پھر زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اور ان کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی حفاظت فرمائی اور اس میں سوار ایمان والوں کی حفاظت فرمائی تھی. تو یہ واقعہ جس سال پیش آیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے اس واقعے کے دن کو اور اس سال کو اپنے کیلنڈر کا پہلا دن اور پہلا سال قرار دیا. ایسے واقعات بہت سارے دنیا میں پیش آئے. مختلف قوموں نے جس کو وہ مانتے تھے ان کا کوئی بڑا واقعہ اور کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ لوگ اس کو اپنی تاریخ اور اپنے کیلنڈر کا پہلا دن اور پہلا سال قرار دیتے تھے. یہ دستور چلا رہا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابرہا نے خانہ کعبہ کے اوپر کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے حملہ کیا تھا مکۃ المکرمہ میں. تو وہاں کے قریش مکہ اور عرب لوگوں نے اس سال کو اپنے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا تھا کہ یہ ہمارا کیلنڈر کا پہلا سال ہے. اس طرح لوگ یاد کرتے تھے. تو ماضی کے واقعات کو یاد رکھنے کے لیے یا فیوچر کے معاملات کو مقرر اور متعین کرنے کے لیے دن، ہفتے، مہینے اور سالوں کے ذریعے گنتی کر کے اور حساب لگا کر کے جو
कैलेंडर तैयार किया जाता है, एक तकवीम तैयार की जाती है। जब हर कौम के अंदर ये चीज़ पाई गई तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी लोगों में ये चर्चा शुरू हुआ कि जब हर कौम का अलग अलग अपना एक कैलेंडर है, जैसा कि ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके अकीदे के मुताबिक जिस साल विलादत हुई या जिस साल उनके अकीदे के मुताबिक उनको सूली पर और क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था, उस साल को उन्होंने अपने कैलेंडर का पहला साल करार दिया और वहीं से ईस्वी सन का यह सिलसिला शुरू हुआ, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर जिसको कहा जाता है, या जिसे हम शमसी कैलेंडर से याद करते हैं। इसी तरह आप देखें तो जिस मुल्क में हम और आप बसते हैं वहाँ लोगों का ज़्यादातर एतकाद सितारों और उनकी राशियों के ऊपर हुआ करता है। तो सितारों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को सामने रख कर के उन्होंने दिन, महीने और साल को मुकर्रर किया, जिसको आजकल की हिंदी और गुजराती ज़बान में उसको जंतरी से ताबीर किया जाता है। मुसलमानों में भी ये फिक्र हुई कि जब हर कौम का एक कैलेंडर है और हर कौम जो है अपने लिए एक ऐसा कैलेंडर तैयार कर रही है या किए हुए हैं जिसके ज़रिए वो अपनी इन चीज़ों को याद रखते हैं और अपने अपने मामलात को तय करते हैं कि मैं आइंदा महीने में आऊँगा या फलाने दिन आऊँगा। मज़हब इस्लाम की भी कोई ऐसा कैलेंडर होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अपने इन वाक़यात को याद कर सकें। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक मीटिंग बुलाई, मशवरा हुआ और मशवरा करने के बाद, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, मुझे वो नहीं करनी है, कुछ मोटी मोटी बातें करनी है इस सिलसिले में, कि मशवरा करने के बाद ये तय पाया कि हिजरत के साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार दिया जाए और मुहर्रमुल हराम के महीने को इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना करार दिया जाए। चुनांचे जिस साल हिजरत का वाक़या पेश आया था वो साल इस्लामी कैलेंडर का और इस्लामी तारीख का पहला साल करार पाया और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख ये इस्लामी कैलेंडर के पहले साल का पहला महीना और पहली तारीख पे पाई। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इस्लाम की तारीख में तो बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वाक़या ये कोई कम वाक़या नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस साल नबूवत मिली ये साल नबूवत वाला भी ये कोई कम साल नहीं है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़हब इस्लाम को समझ लीजिए कि कुव्वत देने के लिए और तक़वियत देने के लिए जो पहली जंग लड़ी थी, जिसको गज़वे बदर कहा जाता है, जंगे बदर कहा जाता है, इस जंग को और इस कह लीजिए कि इस गज़वे को इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी हैसियत हासिल है, इसलिए कि ये मज़हब इस्लाम की गोया कि एक फैसला कुन जंग कही जाती थी, ये आर पार की जंग कही जाती थी। यहीं से इस्लाम को फरोग मिला और यहीं से इस्लाम को गोया के तरक्की मिली है और हजरात सहाबा को गोया के पहले अपने हक के हुसूल के लिए और हक को वसूल करने के लिए लड़ने की जिस जंग में इजाजत मिली है वो कौन सी जंग है? यही जंगे बदर है। जिस साल ये जंगे बदर पेश आई, मालूम होता है कि उस साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार दिया जाए। फिर आप देखें तो फतह मक्का का वाक़या पेश आया कि शान बान के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए काबा मुक़द्दस को बूतों से और शिर्क से पाक कर दिया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है गोया के बाद आज के साल के बाद कभी भी काबे के अंदर कोई मुशरिक दाखिल होना चाहे तो नहीं हो सकेगा। ये ऐलान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दिया और इस तरह से ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश आए हैं, मगर उनमें से किसी वाक़ये को इस्लामी तारीख का पहला यानी इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार नहीं दिया जा रहा है।
और हिजरत ही के वाक़ये को, और हिजरत जिस साल पेश आई है उसी साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल क्यों करार दिया जाता है, ये एक सवाल है, ये सोचने का सवाल है, ये समझने की चीज है। वरना इतने सारे वाक़यात पेश आए और क्यों वो नहीं, और ये वाक़या जो हिजरत का वाक़या है वो जिस साल पेश आया वही हमारे कैलेंडर का पहला साल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से कैसे करार दिया और क्यों करार दिया, आखिर इसकी वजह क्या है, एक सोचने और समझने की चीज है। हमारे हजरात उलमा ने इसके ऊपर काफी तहकीक की, रिसर्च किया और उसके बहुत अच्छे कह लीजिए कि उसकी हिकमतें और मसलिहतें बयान फरमाई है। कहा कि हिजरत के वाक़ये को इसलिए इस्लामी तारीख का और कैलेंडर का पहला साल करार दिया जाता है कि हिजरत की बुनियाद के ऊपर मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा में जो दब कर के जिंदगी गुजार रहे थे, हिजरत के वाक़ये के बाद वो अब आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने के अहल बन गए थे। और इतना ही नहीं, इसके बाद उलमा फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जब तक रहते थे उस वक्त वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो नहीं गुजार सकते थे, मगर हिजरत के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में गए तो अपने उसूलों और अपने बंधारण के साथ जिंदगी गुजारना और आज़ादी के साथ अपने उसूलों को अपनाने का उनको हक मिला। तो वो कौन से वाक़ये की बुनियाद के ऊपर मिला है? हिजरत के वाक़ये की बुनियाद के ऊपर मिला है। अरे आप एक कदम आगे बढ़ करके देखें, मदीनतुल मुनव्वरा में चले जाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बिला झिझक और बिला किसी डर और खौफ के आकर के बैठ जाते थे और मजहब इस्लाम की जो तालीम हुआ करती थी और मजहब इस्लाम का जो मार्गदर्शन हुआ करता था उसको आराम और आसानी के साथ लेकर के अपनी इस्लामी जिंदगी गुजारना उनके लिए आसान बन गया था। ये भी हिजरत की बुनियाद के ऊपर हासिल हुआ, जबकि मक्कतुल मुकर्रमा में अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में कोई हुक्म सीखने के लिए आना भी चाहता था तो छुप करके उसको आना पड़ता था। मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान की तिलावत भी करनी पड़ती थी तो बहुत खुफिया तौर पर और आहिस्ता आवाज से करनी पड़ती थी, मगर हिजरत के बाद जब मदीना तशरीफ ले गए तो अब कुरान को नमाजों में जो कुरान पढ़ा जाता है बुलंद आवाज से पढ़ा जा रहा है, मस्जिदों के अंदर हल्के लगने शुरू हो चुके हैं और कुरान की तालीम चाहे जिस कदर और जिस तरह से करना चाहे वो एकदम आजादी के साथ करना आसान हो गया था। ये चीज भी कब हासिल हुई थी मुसलमानों को? हिजरत के बाद ही हासिल हुई थी। इसके अलावा आप देखें तो इस्लाम का दायरा भी अगर वसी हुआ, इस्लाम जजीरतुल अरब से निकल करके इस्लाम दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर फैला, अफ्रीका के जंगलों तक वो फैला और आप कहें तो वहां से लेकर के इस मुल्क के अंदर और एशियाई ममालिक के अंदर भी अगर इस्लाम को फैलने का मौका मिला तो वो कौन से जमाने के बाद मिला है? हिजरत के जमाने के बाद ही मिला है। आप मदीनतुल मुनव्वरा की पूरी तारीख का मुताला करें तो वो चीजें इस्लाम को हासिल हुई है और वो चीजें मुसलमानों को हासिल हुई है। उनको जो है स्पीच के एतबार से अपनी वाणी स्वतंत्रता जिसको कहा जाता है, जिसको लिसानी आज़ादी जिसको कहा जाता है, ज़बानी आज़ादी जिसको कहा जाता है, फ्रीडम टू स्पीच जिसको कहा जाता है, ये सब चीजें अगर हासिल हुई है तो हिजरत के बाद हासिल हुई, हिजरत से पहले हासिल नहीं हुई है। मतलब यह है कि अजीम तरीन कुर्बानी देने के बाद, अजीम तरीन कुर्बानी देने के बाद जो हिजरत के मौके के ऊपर पेश आई है ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। आपको मालूम है नबूवत का मिशन तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे हिरा से शुरू किया था। नबूवत का मिशन तो कहां से शुरू हुआ था? गारे हिरा से शुरू हुआ था। और हिजरत, अच्छा वो पहला दौर खत्म हो रहा है कहां पर? गारे तौर पर आकर के खत्म हो जाता है और गारे तौर से गोया के ये मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत का ये सिलसिला शुरू हो रहा है। वहां से लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया के अंदर रब तबारक व तआला ने चाहा रहे और फिर दुनिया से पर्दा फरमा गए, फुतुहात ही फुतुहात और खुशियां ही खुशियां कह लीजिए और इस्लाम को एक के बाद दूसरी आज़ादी, तीसरी आज़ादी, चौथी आज़ादी, हर मैदान के अंदर मुसलमानों को और इस्लाम को आज़ादी मिली तो वो कौन से वाक़ये के बाद मिली है? हिजरत के वाक़ये के बाद मिली है। लिहाजा बहुत सोच समझ करके हजरात सहाबा ने
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مشورہ کر کے ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا ہے. یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا ہے. مسلمانوں، یہ سب چیزیں ہمیں ہجرت کی بنیاد کے اوپر ملی ہے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اور اہل اسلام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انگریزی کیلنڈر اور انگلش کیلنڈر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی کیلنڈر کو بھی اپناوے، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر میرے اور آپ کی آئیڈینٹی ہے اور میرے اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے، اور یہ آئیڈینٹی ہمیں ویریفائڈ رکھنا ہے اور اپنے ساتھ اس کو لگائے رکھنا ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں سمبول کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، کچھ چیزیں پرتیک بن جاتی ہے اور کچھ چیزیں ہمارا شعار بن جاتی ہے. اس سمبول کے ساتھ جب تک ہم لگے رہتے ہیں اس وقت تک ہماری آئیڈینٹی باقی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ سمبول ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پرتیک کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، ہماری شناخت اور پہچان ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ ہمارا سویلائزیشن جو ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری سٹیزن شپ ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر ہم گویا کہ دوسرے درجے کے شہری بن جایا کرتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے پہلے درجے کے انسان بننا چاہتے ہیں تو جہاں وہ انگریزی اور کہہ لیجیے کہ انگلش کیلنڈر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہیں انہیں چاہیے کہ اس کیلنڈر کے ساتھ ساتھ اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کیلنڈر کے پیچھے بہت ہی کہہ لیجیے کہ سارے فوائد قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. مسلمانوں کو یہ فوائد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں. آپ ذرا سوچیں تو سمجھیں. صحیح انگلش کیلنڈر جس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں، اس کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اب تک کی تاریخ میں بے شمار مرتبہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. ایک 544 عیسوی کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا تھا، 1422 عیسوی کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا تھا، پھر 1500 عیسوی کے قریب اس کو تبدیل کیا گیا تھا، اس کو بدل دیا گیا تھا. یہ باتیں تو تاریخ نے نوٹ کی ہے. اس کے علاوہ جن باتوں کو تاریخ نے نوٹ نہیں کیا ہے، ہسٹری میں اس کو جگہ نہیں دی گئی ہے، وہ الگ ہے. اس کے علاوہ کئی مرتبہ اس کو بدل دیا گیا ہے. جبکہ اسلامی کیلنڈر کے بارے میں جو 12 مہینے ہماری شریعت میں مقرر فرمائے ہیں، جس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور جس کا اختتام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ذی الحجۃ الحرام کے اوپر ہوا کرتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی بناوٹ نہیں ہے یا کسی انسانوں کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن اس سلسلے میں بالکل پوری صفائی اور وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے. ایک دم اسپشٹ کرتے ہوئے یہ بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یوم فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. فی کتاب اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، ابھی حضرت انسان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، کسی دوسری مخلوق کو بھی گویا کہ پیدا نہیں کیا تھا. ابھی صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں کا کیلنڈر بنا کر کے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا. جس کیلنڈر کے اندر جب سے وہ بنا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور کبھی ترمیم نہیں ہوئی ہے. صرف یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، دوسرے بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں. تو مسلمانوں، وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو چھوڑ کر کے کسی غیر مسلم کیلنڈر کا استعمال کرنا شروع کر دیں؟ آخر کبھی اس کے اوپر سوچا ہم نے کہ اسلامی کیلنڈر کو اپنانے میں کیا فائدہ ہے اور غیر اسلامی کیلنڈروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے سے کون سے نقصانات پائے جاتے ہیں؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس تاریخ سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور مئی بلکہ جون اور جولائی تک کے یہ جو مہینے بیان کیے جاتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رومن زبان کے کلمات ہے، اور رومنوں نے ان ناموں کے پیچھے جو چیزیں اور جو اسباب تھے ان اسباب کو سامنے رکھ کر کے یہ نام انہوں نے تیار کیے ہیں. چنانچہ دیوی دیوتاؤں کے ناموں کے ذریعے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون اور جولائی کو انہوں نے تجویز کیا ہے. یہ بات یہ لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، مجھے اس کے اوپر جانا نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں محرم الحرام، کیا اس نام کو لینے میں ہی مزہ آ رہا ہے. محرم الحرام یعنی بڑی عظمتوں والا مہینہ.
आप देखें किसी भी महीने के अंदर कहीं भी आपको कोई शिर्क नजर नहीं आएगा, किसी भी महीने के अंदर आपको कोई खराबी नजर नहीं आएगी। जबकि जनवरी के अंदर आप देखें तो रोमनों ने उनकी एक देवी थी, जिस देवी के बारे में उनका गलत अकीदा ये था कि उसके दो मुंह है, उसका एक अगला हिस्सा यानी कि वो आगे की तरफ से भी देखती है और वो पीछे की तरफ से भी देखती है। उस देवी का नाम गालिबन यासान या जासान इस तरह का कुछ नाम था। उसी को सामने रख करके उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर का पहला नाम, महीने का पहला नाम क्या रखा है, जनवरी या जनवरी रखा है। ये देवी देवताओं के नाम से इसको तजवीज किया गया है, लेकिन कुरान कह रहा है इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। हाँ, अल्लाह के यहाँ अगर साल के महीनों की कुल गिनती है तो वो कितनी हुआ करती है, 12 महीनों की हुआ करती है। और ये आज या कल से नहीं बल्कि उस दिन से जिस दिन से परवरदिगार ने आसमान और जमीनों को पैदा फरमाया है। और फिर फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 महीने तो ऐसे हैं कि जो बड़ी अजमतों वाले हैं और बड़ी रहमतों वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 4 में से एक महीना मुझे और आपको अता फरमाया है, जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, और वो मुहर्रमुल हराम का महीना है और जिसकी आज 8वीं तारीख से हम गुजर रहे हैं। आइंदा कल 9वीं तारीख होगी और उसके बाद 10वीं तारीख होगी। पूरे मुहर्रमुल हराम के महीने की एक मुस्तकिल फजीलत है और 10वीं मुहर्रम की एक मुस्तकिल फजीलत है जिसको यौम आशुरा कहा जाता है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके के ऊपर फरमाया अफज़लुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के महीने के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर किसी महीने का रोजा हो सकता है तो वो मुहर्रमुल हराम का रोजा हो सकता है। अब पहले मुहर्रम से लेकर के आखिरी तारीख तक के किसी भी दिन के अंदर रोजा रखो तो ये फजीलत वाला रोजा हुआ। और फिर उन पूरे महीने के अंदर सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर रोजा किसी दिन का है तो वो कौन से दिन का है, आशूरा के दिन का है, जिसको 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन कहा जाता है। रिवायतों से ये बात साबित होती है कि जब रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया के उसको बहैसियत फर्ज यानी 10वीं मुहर्रम के रोजे को रखते थे। मक्कतुल मुकर्रमा में भी मुहर्रमुल हराम को, चाहे अभी इस्लाम आया नहीं था उससे पहले भी बहुत अजमत और एहतराम व अदब से देखा जाता था और उसकी बड़ी ताजीम की जाती थी। मक्के में रहते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन का रोजा रखते थे। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे तो देखा कि यहूद और नसारा भी इसका रोजा तो रखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खालिफुल यहूद, आप अगर रोजा रखते हैं तो हमें भी रोजा तो रखना है। अगर 10वीं मुहर्रम का रोजा यहूद और नसारा रखते हैं तो उससे कहीं ज्यादा हक ये बनता है कि हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान इसका रोजा रखें। मगर रखना किस तरह से है, अगर आइंदा साल आएगा और गोया मुझे मौका मिलेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, तो मैं 10वीं के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा ताकि हमारे यानी कि इस्लाम और यहूद के दरमियान में मुशाबहत पैदा न हो जाए बल्कि उनके दरमियान में मुखालफत पैदा हो जाए। मगर इत्तिफाक की बात यह हुई कि अगला साल आने से पहले पहले रबीउल अव्वल के महीने में ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और वो आया नहीं, लेकिन आपकी चाहत ये थी। चुनांचे हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और हजरात ताबईन, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे औलियाए इज़ाम, ये सब जो है उस जमाने से लेकर के अब तक 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो इस तौर पर रखते हैं कि पहले 9वीं तारीख का और फिर 10वीं तारीख का या फिर 10वीं तारीख का और 11वीं तारीख का रोजा रखा जाता है। ये मुस्तहब अम्र है, अगर कोई करे तो ये ज्यादा बेहतर है ताकि यहूद के साथ मुशाबहत लाजिम ना आवे। इससे भी समझ में आता है कि मुहर्रमुल हराम के महीने को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। इसी बुनियाद पर तो एक रिवायत में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया जाता है, फरमाते हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा की फजीलत को साबित करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन वस्सा, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना, मन वस्सा अला अहलिही व मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही, कि जो शख्स अपनी जात के ऊपर और अपने अहले खाना के ऊपर वुसअत से काम लेता है, वस्सा अल्लाह
अल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसके ऊपर वुसअत फरमा देते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फजर्रबनाहु, हमने इसका तजरबा किया, फवजदनाहु कज़ालिका, तजरबा करने के बाद हमने उसको इसी तरह से पाया। एक आशूरा के दिन अपने घर वालों के ऊपर, याद रखना हदीस के जो अल्फाज है वो क्या है, अपने अहले खाना के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर, या उन लोगों के ऊपर जो जिनके हम वली हैं, जो हमारी सरपरस्ती के अंदर आ रहे हैं, उनके ऊपर कुछ वुसअत से काम लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता फरमाया है उसमें से कुछ खर्च किया जाए, ज्यादा खर्च किया जाए, कुछ अच्छा खाना पकाया जाए, कुछ उनसे ज्यादा शफ़क़त का मामला कर लिया जाए, कुछ हमारे हाथ को थोड़ा लंबा कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, पूरे साल उस इंसान के ऊपर रब तबारक व तआला की जानिब से रोजी की बरकतें आम हो जाएगी और वसी हो जाएगी, गोया वो घर फाते से दो चार नहीं होगा। जाबिर फरमाते हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फजर्रबनाहु, हमने इसको आजमाया, फवजदनाहु कज़ालिका, हमने ऐसा ही पाया जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसीलिए एक मरतबा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये बात बयान फरमाई कि मन वस्सा अला अहलिही वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सना, जो आदमी अपने अहल पर वुसअत करता है पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला उसको रोजी की बरकतें अता फरमाते हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर इब्न खत्ताब का ये कौल नकल करते हैं और उस पर उनके एक शागिर्द हजरत यहया इब्न सईद जो है वो फरमाते हैं कि फजर्रबनाहु फवजदनाहु हक्का, हमने भी इसका बार बार तजर्बा किया तो हमने इसको बरहक पाया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत उलमा यहाँ पर बैठे हैं, जानते हैं, सुफियान इब्न उयैना बहुत बड़े मुहद्दिस है, हदीस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मकाम है और एक बहुत बड़ा रुतबा है। उन्होंने भी ये बात उनकी तरफ से भी एक बात नकल की जाती है कि फजर्रबनाहु, हमने इसको आजमाया, 50 साल तक हमने इस बात को आजमाया। हर साल आशूरा का दिन आता था और हर साल हम अपने बीवी बच्चों के ऊपर खूब वुसअत से खर्च करते थे। वो फरमाते कि 50 साल तक हमने इसको आजमाया, 50 सनतन फलम नरहु इल्ला हक्का, हमने नहीं पाया मगर ऐसा ही जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इससे भी समझ में आता है कि यौम आशूरा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब और गरीब फजीलत अता फरमाई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसका रोजा भी बड़ी फजीलतों वाला है। यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यौम अरफा के रोजे की फजीलत तो ये है कि अगले और पिछले साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के 10वीं मुहर्रमुल हराम जिसको यौम आशूरा कहा जाता है, उस रोजे की फजीलत का हाल ये है कि अगर कोई इंसान उस दिन का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साले गुज़श्ता के तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। इतनी बड़ी फजीलत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा के बारे में बयान फरमाई है। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि याद रखो, मुहर्रमुल हराम को इतनी बड़ी जो फजीलत हासिल हुई है, ये वाक़िए करबला की बुनियाद पर हासिल नहीं हुई है। ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। बेशक वाक़िए करबला, हादसे करबला इस्लामी तारीख के अंदर दिल को कह लीजिए कि रुलाने वाला और इंसान को पिघला देने वाला वाक़िया है, इसलिए कि इस वाक़िए की बुनियाद के ऊपर नवासे रसूल की शहादत हुई है। इस वाक़िए की बुनियाद के ऊपर जिगर गोशे रसूल को काटा गया था और उम्मत गोया के इस मौके के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नवासे के अंदर जो टैलेंट पाया जाता था, जो सलाहियत पाई जाती थी और उनके अंदर जो क़ियादत और नेतृत्व करने का एक जज्बा पाया जाता था और जो सलाहियत थी, उससे उम्मत महरूम हो गई है। एक बहुत बड़ा हादसा है। जब हम इस हादसे और वाक़िए को याद करते हैं तो वाकई में आंखें नमनाक हो जाती है और दिल रोने लगता है। हम इसकी फजीलत का भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये फजीलतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई है, वाक़िए करबला अभी पेश आया नहीं था, इससे पहले बयान फरमाया है। इसलिए जनाब ये तो बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला महीना हुआ, हम इसको सोग का महीना और मातम का महीना कह करके इसकी फजीलतों से और इस महीने की खुशियों से कैसे महरूम हो सकते हैं? ये चीज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर नहीं है। मैं बहुत खुल करके ये बात पूरी वजाहत और सफाई के साथ कहना चाहता हूं, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है, ये शियों की तरफ से हमारे अंदर आया हुआ अकीदा है।
یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس کے بارے میں چیزیں بیان فرمائی اور کہا یہ تو ماتم کا دن ہے. ذرا پوچھو تو صحیح قرآن سے پوچھو کہ ماتم کرنے کی اجازت کس کو ہے اور کتنے دن کی ہے؟ ہاں، سوگ منانے کی اجازت کس کو ہے اور کتنے دن کی ہے؟ پوچھیں گے قرآن سے، پوچھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے. قرآن کہتا ہے وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس عورت کے لیے 4 مہینہ اور 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. اور اگر کسی کا بیٹا مر جائے یا کسی کا بھائی مر جائے، کسی کے والدین مر جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کے لیے تعزیت وغیرہ کے احکام جو ہے لازم ہوتے ہیں یا اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی سوگ منانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اور پھر 10ویں محرم الحرام کے دن کو شہادت حسین کی بنیاد کے اوپر منحوس سمجھنا، یہ تو ہماری سمجھ میں کسی بھی صورت میں آتا ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا شہادت یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ کیا شہادت کی بنیاد پر کوئی دن منحوس ہو جائے گا؟ پہلے نمبر کی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، اے انسان یعنی کہ انسان مجھے اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے اس وقت جب کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وہ انس دہر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تو زمانہ ہوں، یعنی زمانہ میرے ہی تو تابع ہے. بقبضی بیدی، میرے ہی کنٹرول کے اندر تو ہے. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا یہ ہیر پھیر میرے کنٹرول کے اندر ہے. پھر کیوں اس کو منحوس سمجھا جائے اور کیوں اس کو برا بھلا کہا جائے؟ اس کی ہرگز اجازت پہلے نمبر پر نہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر شہادت کی وجہ سے کبھی کوئی دن اور کوئی سال منحوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شہادت اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بخود بار بار شہید ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، بار بار شہید ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے. غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے، میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے، میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی آدمی اس بات کی تمنا ہرگز نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں. کرے گا کوئی تمنا؟ جنت میں چلے جانے کے بعد کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دوبارہ کہاں جانا ہے، دنیا میں جانا ہے جنت میں جانے کے بعد. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الا الشہید، مگر وہ شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر میں جہاد کروں اور پھر مجھے جو ہے شہید کر دیا جائے. ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ وہ اس طرح کی تمنا کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ شہادت یہ کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. وہ شہید چونکہ جنت میں شہادت کی بنیاد کے اوپر جو اس کی نعمتوں کو دیکھ لے گا تو اس کی تمنائیں بڑھ جائے گی کہ پھر میں دوبارہ جاؤں، پھر شہید ہو کر کے آؤں، پھر دوبارہ جاؤں، پھر شہید ہو کر کے آؤں تو مجھے اتنی بڑی جنت اور اتنی ساری نعمتیں ملے گی. لہذا کسی بھی صورت میں اس واقعے کی بنیاد کے اوپر بزرگوں یہ نحوست کا دن نہیں ہو سکتا ہے. اور یاد رکھے ایسے واقعات اسلامی تاریخ کے اندر، بے شک پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، شہادت حسین کا واقعہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو کیا یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا؟ بتاؤ تو صحیح. ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو نبوت دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے. یہ تو نواسے ہیں اور یہ تو اصل ہے. وہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے مگر کسی نے اس کو غم کا دن قرار نہیں دیا. آپ آگے بڑھیں تو سن ہجری 3 کے اندر غالباً شوال کے مہینے کے اندر سید الشہداء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے صرف جا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ معلوم ہونا چاہیے ٹکا بوٹی کر دی گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا ہے. مورخین نے اس بات کو نوٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا. کسی کی ٹانگ کاٹ کر کے رکھ دی گئی تھی، کسی کا ناک کاٹ کر کے گویا کے رکھ دیا گیا تھا. لاشوں کی اتنی بے حرمتی ہوئی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ پورے مدینے کے اندر ایک دم سے ماتم سا چھا گیا تھا. 70 صحابہ، وہ کریم صحابہ تھے،
जिनसे काम लेना था भी मजहब इस्लाम को, जिससे इस्लाम को जजीरतुल अरब से बाहर निकालने के लिए ये इस्लाम के रजाकाराना और वॉलंटियर थे, इसकी बहुत जरूरत थी, मगर इसके बावजूद भी उस महीने को कोई गम का महीना करार नहीं देता है। आप देखें तो सही, 70 सहाबा ने शहादत पाई, उनके औलाद होगी वो यतीम हो गई थी, उनकी अगर बीवियां थी तो वो बेवाएं हो गई थी, कई घर उजड़ गए हैं, मगर आप देखें तो सही, दामाद रसूल हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन सन हिजरी 40 के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। मगर आपको मालूम है कि इस वाक़ये को और इस महीने को भी किसी ने गम का महीना नहीं करार दिया। आप देखें तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन सन 35 के अंदर इस दुनिया से जा रहे हैं, मगर आपने देखा कैसा वाकया पेश आया था और कितना दिलदोज वाकया। शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर बयान किया जाए हिचकियां बन जाएगी। हाँ, इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता है। ऐसा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ सलूक हुआ है। हाँ, उस उस्मान के साथ जिसने मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके वक़्फ़ की थी। हाँ, मदीने के लोग पानी के लिए तरसते थे, लेकिन वही उस्मान जब शहादत की मौत मर रहे हैं तो एक घूंट पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। को मालूम होना चाहिए मदीने का कुआं खरीद करके पहले आधा खरीदा था, फिर आधा खरीदा और फिर पूरा कुआं हमेशा के लिए मदीना के लोगों के लिए वक़्फ़ कर दिया था। मगर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को वो मौत उन्होंने यानी वो शहादत दी है कि तारीख इसको भुला नहीं पाती है। क्या बताओ तो सही, क्या उस महीने को किसी ने शोक का महीना करार दिया? क्या उस महीने को मातम का महीना करार दिया? सिर्फ और सिर्फ इसी महीने को मातम का महीना करार दिया जाता है। मालूम हुआ कि यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। ये अगर चीज आई है तो कहां से आई है बोलो? शिया मजहब से आई है, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक 3 के अलावा सबको मुर्तद करार देते हैं। भला उनके यहां से आई हुई चीज कैसे मुअतबर हो सकती है? उनका अक़ीदा है, उनके दस्तावेज के अंदर ये बात लिखी है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम मुर्तद्दून इल्ला सलासा, तमाम के तमाम सहाबा मुर्तद है नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मगर 3 सहाबा। भला न अबू बकर को माने, न उमर को माने, न उस्मान को माने और उसके अलावा और किसी को न माने सिवाय दो चंद सहाबा के, तो फिर भला उनके वहां से आने वाली बात के ऊपर हम कैसे एतमाद कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इस दिन और इस महीने के अंदर इबादतों का एहतमाम किया जाए। आखिरी बात कहकर के अपनी बात को खत्म करता हूँ। हाँ, हजरत इमाम अबू बकर दस्तास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान के अंदर एक बात लिखी है, वो ये कि मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादतों का एहतमाम करे, इस बुनियाद पर कि जिसने इस महीने और दिन के अंदर इबादत का एहतमाम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे महीने इसी तरह इबादतों की तौफीक अता फरमाएगा और ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से इस महीने में बचने की कोशिशें करे। जिस कदर इस महीने में गुनाहों से हम बचेंगे, फरमाते इमाम अबू बकर दस्तास रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह तबारक व तआला साल भर उसको इस तरह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही कदर करने की, इस महीने की अजमत और हुर्मत को पहचानने की तौफीक अर्ज़ानी नसीब फरमाए। और 2-4 मिनट मैंने आपकी ज्यादा ले ली, इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। होगा